السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین حصے اول کے اسباق میں آپ کا استقبال ہے۔ اب تک ہم نے الحمدللہ 3 اسباق مکمل کر لیے۔ آج ہم دیکھیں گے چوتھا سبق۔ پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھا تھا، پہلا سبق تھا بایع الاسنامی۔ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے کہ ایک آزر ہیں جو بت فروش ہیں، بت کو بناتے بھی ہیں، بت کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے سبق میں معلوم ہوا ولد آزر، آزر کا ایک بیٹے ہیں جو ہونہار ہیں، جن کا نام ابراہیم ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بتوں کو کھانا رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، لیکن بت نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ دل میں سوچتے ہیں کہ لوگ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں۔ پھر تیسرا سبق ہمارا تھا نصیحت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نصیحت کرتے ہیں کہ ابا جان، یہ بت نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، ایک مکھی کو حق بھگا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ بنا بات کر سکتے ہیں، نہ ہماری بات کو سن سکتے ہیں، تو آپ کیوں سجدہ کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پوچھتے ہو؟ تو والد ان کے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو بھی نصیحت کی گئی تو لوگ بھی خفا ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں اور بات کو نہیں سمجھتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سوچ لیتے ہیں کہ اب میں بتوں کو توڑ دوں گا، جب لوگوں کے پلے بات بیٹھے گی۔ تو آج کا سبق ہے ابراہیم یکسر الاسنام۔ تو یہ پہلا جو پارٹ ہے قصص النبیین کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کا جو تھیم ہے وہ ہے من کسر الاسنام۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس تھیم پر پورے اسباق ہیں، بتوں کو کس نے توڑا۔ تو آپ دیکھو گے کہ وہ تھیم کے حساب سے یہاں پر اس کا جواب مل گیا، ابراہیم یکسر الاسنام، ٹھیک ہے نا۔ تو ابراہیم یہ مبتدا ہو گیا، یکسر فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مبتدا ہو گیا، یکسر الاسنام یہ پورا مبتدا کی خبر ہوگا، یہ پورا کیا ہوگا؟ مبتدا کی خبر ہوگا۔ یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گیا۔ تب ترکیب کیا کریں گے؟ ابراہیم مبتدا ہو گیا، یکسر الاسنام یہ خبر ہو گیا۔ اب صرف یکسر الاسنام کی ترکیب کرنا ہے، تو یہ فعل ہو گیا یکسر، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، الاسنام مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورے مل کر کیا ہو گیا؟ ابراہیم کی خبر بن گئی، مبتدا کی خبر بن گئی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم یکسر الاسنام، ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے۔ آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیں، سمجھ میں آ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو دوست احباب کے ساتھ بھی جو ہے اس کو شیئر کریں۔ ایک سیکنڈ، ہم پہلے صاف کر لیں گے، پہلے چلیے۔ وَجَاءَ يَوْمُ عِيدٍ فَفَرِحَ النَّاسُ، واو کو چھوڑ دیں۔ جاء فعل واحد مذکر غائب ماضی ہے، یوم عید مضاف مضاف الیہ، عید کا دن، یوم کہتے ہیں دن کو، تو ترجمہ الٹا ہوگا، اس کا ادھر ترجمہ ہوگا، اس کا ادھر ہو جائے گا، عید کا دن۔ اور عید کا دن آیا، یعنی جو بھی تیوہار ہے، جو بھی ان کا فیسٹیول ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جو تھا، بتوں کی پرستش کرتے تھے جو لوگ، تو وہ جو فیسٹیول تھا وہ دن آ گیا۔ فَفَرِحَ النَّاسُ، تو یہ فا جو ہے حروف عطف ہے پہلا والا، دوسرا ہے فریحہ، اسی سے فرحان بھی ہے، ٹھیک ہے نا میرا۔ فریحہ خوش ہونا، ماضی کا ترجمہ ہوگا وہ خوش ہوا۔ فریحَ النَّاسُ لوگ خوش ہوئے، تو یہ فعل ہو گیا اور الناس فاعل ہو گیا۔ عید کا دن آیا تو لوگ خوش ہوئے، وجاء یوم عید ففرح الناس، عید کا دن آیا تو لوگ خوش ہوئے۔ وخرج الناس، خرج نکلنا، خرج یخرج خروجا نکلنا، خرج نکلا، الناس لوگ نکلے، للعید عید کے لیے، یعنی عید کی خوشیاں منانے کے لیے۔ جیسے اب دیکھیں ہم جو ہے عید منانے کے لیے نماز مسجدوں کو جاتے ہیں، لوگوں سے ملنے جاتے ہیں، عیدگاہوں کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کا بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، تیوہار ہوتا ہے، فیسٹیول ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، کچھ ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی نکلے۔ اب عید کے دن بچے خصوصاً نکلتے ہیں۔ وخرج الاطفال، طفل کی جماعت اطفال، اور بچے بھی نکلے، ٹھیک ہے نا، بھی بریکٹ میں آ جائے گا۔ اور عید کا دن آیا لوگ خوش ہوئے۔ خرج الناس للعید وخرج الاطفال، عید کے لیے لوگ بھی نکلے اور بچے بھی نکلے، تو بھی بریکٹ کا ہے، آپ حذف کر دیں۔ وخرج والد ابراہیم، خرج والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد، ابراہیم غیر منصرف ہے اس لیے زیر نہیں آیا، والد مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، تو ابراہیم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے اس لیے زیر نہیں آیا، زبر آیا۔ وخرج والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد نکلے۔ وقال لابراہیم، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، وقال لابراہیم، انہوں نے ابراہیم سے کہا علیہ السلام، الا تخرج معنا،
अला क्या, ला तखरुजू तुम नहीं निकलोगे, माना हमारे साथ, क्या तुम हमारे साथ नहीं निकलोगे, यानी क्या तुम ईद की खुशियां मनाने हमारे साथ नहीं चलोगे। तो काल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अना सकीमुन, अना मुब्तदा सकीमुन खबर, मैं बीमार हूँ। सकीम बीमार को कहते हैं, अना सकीमुन मैं बीमार हूँ। व ज़हबन नासु लोग गए, ज़हबा के मैंने ज़हब यज़हबु ज़िहाबन जाना, ज़हबन नासु जो गए, व बकिया इब्राहिम फिल बैत, बकिया यबकी बाकी रहना, व बकिया इब्राहिम फिल बैत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर में बाकी रह गए, यानी अब पूरी बस्ती खाली हो गई, सब लोग ईद मनाने के लिए निकल गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही सिर्फ घर में बाकी रहे। तो यहाँ तक का एक मरतबा तर्जुमा देख लेंगे। वजाअ यौम ईदिन, ईद का दिन आया, फफरिहन नास तो लोग खुश हुए, व खरजन नासु लिल ईदी लोग ईद के लिए निकले, व खरजल अतफाल बच्चे निकले, व खरज वालिद इब्राहिमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद निकले, कहाँ के लिए निकले, ईद के लिए। व क़ाल लि इब्राहिमा उनके वालिद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, अला तखरुजु माना क्या तुम हमारे साथ नहीं निकलोगे, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, ठीक है ना। क़ाल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अना सकीमुन मैं बीमार हूँ। व ज़हबन नासु लोग गए, व बकिया इब्राहिम फिल बैती और घर में सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहे, ठीक है। यहाँ तक का तर्जुमा चले। वजा इब्राहिम इलल अस्नामी, पिछले सबक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अब तुम बुतों को तोड़ दूंगा, जब भी समझ में आएगी बात। अब यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। वजा इब्राहिम इलल अस्नामी, जा आए, यहां से देखिए जा का इस्तेमाल शुरू हो गया। इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, कहां पर आए, इलल अस्नामी, ये जार मजरूर हो जाएगा बुतों के पास। वक़ाल लिल अस्नामी और उन्होंने बुतों से कहा, किसने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए और उन्होंने बुतों से कहा, क्या कहा, अला ततकल्लमून क्या तुम लोग बात नहीं करते हो, क्या तुम लोग बात नहीं करोगे, अला तस्माउन क्या तुम लोग बात नहीं सुनते हो, क्या तुम लोग बात नहीं सुनोगे। फिर खाना वगैरह वहां पर रखा हुआ था तो उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, हाजा तामुन व शराबुन, ये खाना और पानी है। हाजा मुब्तदा, तामुन व शराबुन जो है अत्फ और मातुफ मिलकर जो है, मातुफ और मातुफ वाले मिलकर खबर हो जाएगा, ये खाना और पानी है। अला ताकुलून क्या तुम नहीं खाओगे, अला तशरबून क्या तुम नहीं पियोगे। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहन में जो बातें चल रही थी, जिसको लेकर जो है वालिद को समझाया, कौम को समझाया, अब आगे बुतों के पास। वसकततिल असनाम, देखो भाई, सकतत ये वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, असनाम जमा मुकस्सर है ना, तो ये वाहिद मुअन्नस है, तो असल में ये ऐसा है, सकतत प्लस अल असनाम, ठीक है ना। मिलाने के लिए इस जज़म को जेर से बदल दिए, क्योंकि वाहिद मुअन्नस हाजिर के सिगे के नीचे जेर होता है, आप कंफ्यूज होंगे इसलिए यहां पर बता दिया। वसकततिल असनाम और बुत खामोश रहे, लिअन्नहा हिजारतुन क्यों, लिअन्नहा क्योंकि वो, लिअन्ना का मतलब होता है क्योंकि, और हा ज़मीर लौट रही है बुतों की तरफ, क्योंकि वो हिजारतुन पत्थर हैं, ला तंतिकू बोल नहीं सकते, दो दो चार की तरह बात है, पत्थर है, बुत क्या है, पत्थर है, वो बोल नहीं सकते। क़ाल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा लकुम ला तंतिकून, ये ब्रैकेट्स में होती है ना, ये आयतें होती हैं कुरान करीम, ऐसे ब्रैकेट्स हों, बस पब्लिशर्स इस तरीके के ब्रैकेट में रखे हैं, बाज इन्वर्टेड कॉमर्स में रखे हैं, अलग अलग पब्लिशर के अलग अलग हैं, तो ये कुरान करीम की आयत है। मालकुम, मालकुम तुम्हें क्या हुआ है, मालकुम आपको क्या हुआ है, किसी से पूछना है तो मालकुम, एक बंदे को पूछना है तो मालका, एक लड़की को पूछना है तो मालकी, मालकुन्ना बहुत सी खवातीन है तो उनको पूछना हो तो मालकुन्ना तुम्हें क्या हुआ है, उसे क्या हुआ है, मालहू, मालकुम ला तंतिकून तुम्हें क्या हुआ है, बुतों से पूछ रहे हैं, ला तंतिकून बोलते क्यों नहीं हो। वसकततिल असनाम, वही बात है कि बुत खामोश रहे, वमा नतक़त और नहीं बोले, ऊपर जो बात आई थी उसी को अलग ताबीर से इस्तेमाल किया, नहीं, यहाँ पर भी वही ताबीर है, बात है, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ बोलने का एंगल अलग है, यहाँ बोलने का एंगल अलग है, दोनों भी एंगल सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हैं और दोनों को आपको सीखना है। सकतत फातिमतु वमा नतक़त, फातिमा खामोश रही और कुछ नहीं कही। सकता इब्राहिम वमा नतक़ा, इब्राहिम खामोश रहे और नहीं बोले।
بعض वक्त जो है टीचर क्लास लेते रहते हैं या वालिदैन क्लास लेते हैं, तो उसको जो है हम पिक्चराइजेशन करके किसी को स्टोरी सुनाते हैं, बोलते हैं कि नहीं अब्बा गुस्से में आए तो इब्राहिम कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, तो वहां पर ये ताबीर इस्तेमाल, ठीक है ना। तो यहां तक का तर्जुमा देख लेंगे पहले रवानी से, ताकि आपको तर्जुमे में मशक्कत ना हो। वजा इब्राहिम इलल असनामी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए, वक़ाल लिल असनामी, और बुतों से कहा, अला ततकल्लमूना, क्या तुम लोग नहीं बोलोगे, अला तस्मऊना, क्या तुम लोग नहीं सुनते हो। हाजिर और मुतकल्लिम, हाजिर यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का दोनों कर सकते हैं। हाजा तामुन व शराबुन, ये खाना और पानी है। अला ताकुलूना, क्या तुम लोग नहीं खाओगे, अला तशरबूना, क्या तुम लोग नहीं पियोगे। वसकततिल असनाम, बुत खामोश रहे, लिअन्नहा हिजारतुन, इसलिए कि वो पत्थर है, ला तंतिकू, बोलते नहीं। क़ाल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मा लकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या हुआ है, बोलते नहीं हो। वसकततिल असनाम, बुत खामोश रहे, वमा नतक़त, और नहीं बोले। अब यहां से हिना इज़िन, इससे पहले भी आया था, उस वक्त गज़िबा इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए। गज़िबा का वर्ड भी पहले आ गया ना, वालिद के गुस्सा होने पर। वह अखज़ल फ़असा, और कुल्हाड़ी उठाई, कुल्हाड़ी मालूम ना, झाड़ वाड़ काटने के लिए जो होती है। अखज़ा फेल हुआ ज़मीर फाइल, और अल्फासा उसकी मफूल भी है, और कुल्हाड़ी उठाई। वह ज़रबा इब्राहिम अल असनामा बिल फासी, ज़रबा मारा, इब्राहिम फाइल हो गए, इब्राहिम ने अल असनामा बुतों को, बिल फासी कुल्हाड़ी से, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को कुल्हाड़ी से मारा। वह कसर अल असनामा, और बुत, उन्होंने बुतों को तोड़ा। कसरा फेल हुआ ज़मीर फाइल, अल असनामा मफूल भी, और उन्होंने बुतों को तोड़ा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और आपने क्या किया, पूरे बुतों को तोड़ दिया। वह तरक इब्राहिम सनमल अकबर, मौसू सिफत, बड़ा बुत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तरका छोड़ा बड़े बुत को, यानी बड़े बुत को नहीं तोड़ा। वअल्लक़ल फ़असा फ़ी उनुक़िही, और वो जो कुल्हाड़ी से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था ना, वो कुल्हाड़ी जो है उसकी गर्दन में लटका दी। उनुक़ी गर्दन पे, ऐसा होता है ना, काम करने के बाद कंधे पर डाल लेते हैं गर्दन पे से अटका कर, उस तरीके से। तो वह अल्लक़ा युअल्लिक़ु तालीक़न, लटकाना। अल्लक़ल फ़असा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लटकाया कुल्हाड़ी को, फ़ी उनुक़िही, उसकी गर्दन में, किसकी गर्दन में, बड़े बुत की। यानी घुमसान की लड़ाई हुई, बड़े बुत की बात छोटे बुतों ने नहीं मानी, ये बड़े बुत ने जो है तमाम छोटे बुतों को जो है तहस नहस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये सबक खत्म होता है। तो करने के काम क्या है, अहम चीज कि सबक को वो बगौर सुने, नोट्स बना लें, जो वर्ड्स के मीनिंग है वो लिख लें। इंशाल्लाह मैं एक दिन बताऊंगा कि जो है कि डिक्शनरी कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप जो है उससे भी फायदा उठाएं। और जो समझ में ना आए तो भी कमेंट कर कर बताएं, समझ में आ गया तो भी कमेंट कर कर बताएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। तरकीब में आपको परेशानी हो सकती है तो आसन नहव अव्वल और आसन सर्फ अव्वल को देखें, उससे आपको तरकीब में मदद मिलेगी। यानी नहव थोड़ा समझ लोगे, फेल सर्फ थोड़ा समझ लोगे, तो जब जो है फिर आपको फायदा होगा। तो यहाँ अभी भी मैं मुख्तसर तरकीब लेकर चल रहा हूँ, उसमें भी अगर आपको दुश्वारी है तो आप क्या करें, कमेंट कर कर पूछ लें, मैं उसको और आसान करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।